Hello everyone, so welcome to a new video, and in this video we will solve John Taylor effect. So you might be thinking John Taylor effect कौन सी topic का है? This is from coordination chemistry inorganic part, right? Now NEET and JEE के syllabus में it is very important, one of the important parts. So we will solve a few questions from John Taylor effect, but before going to the question, let's understand what is John Taylor effect. Okay, so John Taylor effect से में जाने से पहले we will see what is octahedral complex. We know there are few complexes, right? Octahedral complex, be it tetrahedral complex, be it square planar. So we will talk about octahedral complex. Now you can see this is called octahedral complex, in which 4 ligands will be in 4 different corners, and ऊपर एक होगा, नीचे एक होगा. So this is just like this, right? This is called octahedral complex. That means a plane, ऊपर एक, नीचे. This is called octahedral complex. Now when I talk about this octahedral complex, जितने भी metal and ligand के bond है, ये सारे bond होगा same. These all bonds are having same bond length. ये सबका same bond length होगा. Number 1. Secondly, इनमें जो bond angle होगी, all the bond angles will be 90 degree. जितने भी बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री है. दैट मीन्स ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, दिस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर सेम, ऑल द बॉन्ड लेंथ्स आर सेम, राइट? नाउ ऐसा भी कुछ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें नॉर्मलिटी से थोड़ा डिस्टॉर्ट करते हैं. व्हाट डज दैट मीन? सो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. वी नो इट, नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. बट व्हाट इफ आई राइट दिस? सो 4 कॉर्नर में 4a एंड ऊपर एक, नीचे एक. But can you see now the axial bonds are larger than the equatorial bonds? So ऐसे भी होते हैं. This is called distorted octahedral. This is called normal octahedral. This is called distorted octahedral. So you can just write distorted octahedral. Distorted octahedral. And what if I write this? M again AA in 4 corners and ऊपर एक, नीचे एक. Can you see this is also distorted octahedral because both the axial bonds are shorter than the normal octahedral complex, right? So ये होगा normal octahedral complex. This is distorted, or we can say elongated. This is elongated, right? Now distorted octahedral complex, this is also distorted octahedral complex. Why? Because the axial bonds are shorter. Here axial bonds are larger. But ऐसे type का compound generate कब होती है? For that we have to go to John Taylor effect, or this is also called John Taylor distortion. So this is a new topic, John Taylor distortion. So we also call this JTD, John Taylor distortion. This is for number 1, this is for octahedral complexes. For octahedral complexes. Now this is only applicable for octahedral complexes. Number 1, that is called distorted octahedral, we have already seen. And number 2, either elongated or shorted. So this is for unsymmetrical complexes. Unsymmetrical complexes. First of all, इनको octahedral होना चाहिए. Secondly, unsymmetrical होना चाहिए. What does that mean? Unsymmetrical. Let's understand. So before going to unsymmetrical thing, tell me one thing. ये जो बीच में मेटल होते हैं एंड चारों तरफ जो 6 लिगेंड्स होते हैं, ये जो लिगेंड्स का बाय एक रिपल्शन क्रिएट होता है, राइट? मेटल से लिगेंड का एक रिपल्शन क्रिएट होता है. ये जो रिपल्शन है, दिस रिपल्शन इज सेम एवरीवेयर. व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. इफ आई टॉक अबाउट अ नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसमें जितने भी रिपल्शन होंगे सारे सेम होंगे. बट व्हाट अबाउट एबनॉर्मल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स? आप खुद सोचो, जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. दैट मीन्स इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो लिगेंड्स होंगे उससे एक्सियल पोजीशन में जो लिगेंड्स होंगे उनका रिपल्शन या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा. दैट मीन्स ये जो रिपल्शन होते हैं एवरीवेयर 6 लिगेंड्स की तरफ जो 6 रिपल्शंस होगा, दिस रिपल्शंस आर नॉट सिमेट्रिकल, राइट? इफ आई टॉक अबाउट सिमेट्रिकल रिपल्शन, देन इट विल बी अ नॉर्मल octahedral complex. But if I talk about an unsymmetrical repulsion, then it will be abnormal octahedral complex. What does that mean? Abnormal means John Taylor distortion. That means John Taylor distortion is all about unsymmetrical thing. Now what does it mean unsymmetrical? इसके लिए हम number 3 लिखेंगे. We know this is d orbital or d subshell, right? This is d subshell having 5 orbitals, 1 2 3 4 5. But crystal field theory में when ligand approaches to the metal, so this is metal when no ligand is there. बट अगर लिगेंड मेटल को अप्रोच करे बाहर से तो क्या होती है, ये दोनों
हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, राइट? तो नीचे वाले हो जाते हैं T2G, वी ऑल नो, एंड ऊपर वाले हो जाते हैं EG व्हेन लिगेंड इज देयर, व्हेन लिगेंड इज देयर, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। ये होती है, बीच में से एक लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी बैरियर लाइन। ऊपर ज्यादा एनर्जी, नीचे कम एनर्जी। नाउ जस्ट सी, if I talk about symmetrical thing, what does it mean symmetrical? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल दो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल दो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल दो। सी दिस इज सिमेट्रिकल। कैन यू सी दिस इज सिमेट्रिकल? बीच में से एक प्लेन पास कराओगे तो दोनों तरफ सेम होगा, सेम हिस्सों में वो काटेंगे, राइट? तो दैट मीन्स ये सिमेट्रिकल हो गया। और अगर सिमेट्रिकल हो गया तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? दिस इज कॉल्ड D3। और एक सिमेट्रिकल कुछ करते हैं, आप यहाँ पे एक दे दो, यहाँ पे एक दे दो। सी अगेन दिस इज सिमेट्रिकल। आप बीच में से एक लाइन पास कराओगे तो दोनों तरफ सेम होगी, तो दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज D5। सो D3 हो गया, D5 हो गया। नेक्स्ट, अच्छा अगर मैं यहाँ पे एक और कर दूं तो ऐसे, देखो ये भी सिमेट्रिकल है ना, दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल। इफ यू जस्ट पास अ लाइन यू विल सी द सेम साइड्स, राइट, द सेम पार्ट्स। तो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज D8 कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा अगर मैं D6 लिखूं तो क्या होगा? D6, बट वो भी लो स्पिन में। लो स्पिन सबको पता है, व्हाट इज लो स्पिन? दिस इज T2G, दिस इज EG, T2G EG द सेम। लो स्पिन बिन 1 2 3, इसके बाद पेयरिंग हो जाएगी, ऊपर ना उठ के पेयरिंग हो जाती है 4 5 6, दिस इज D6, दिस इज D6। सी अगेन दिस इज सिमेट्रिकल। इफ यू जस्ट पास एन इमेजिनरी लाइन यू विल सी द सेम पार्ट्स बोथ साइड, राइट? सो ये भी हो गया आपका सिमेट्रिकल। दैट मीन्स D3 D5 D8 D6, एंड ऑल्सो इफ आई जस्ट राइट दिस, ये कौन सा है? D10, सो D10। तो ये जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं इंक्लूडिंग D3 D5 D8 D6 D10, ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस के लिए वी आर गेटिंग सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। दैट मीन्स क्या? That means symmetrical electronic configuration, electronic arrangement. What does that mean? That means symmetrical repulsions everywhere. और अगर symmetrical repulsion मिल गया, that means चारों तरफ जो बॉन्ड होते हैं 6 bonds, ये जो 6 bonds होते हैं octahedral complex, वो क्या होगा? सेम हो जाएगा। That means repulsion सब जगह सेम है, तो बॉन्ड एंगल भी सेम है, बॉन्ड लेंथ भी सेम है। So this is normal octahedral complex, normal octahedral complex, right? नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं हुआ। अगर डिस्टॉर्शन नहीं हुआ तो जॉन टेलर इफेक्ट होने ही करेगा। सो फॉर D3 D5 D8 D6 लो स्पिन एंड D10 नो JTD, दैट मीन्स नो जॉन टेलर इफेक्ट इज देयर। जॉन टेलर इफेक्ट दैट मीन्स किसके लिए होगा? इसको छोड़ के जो भी होगा, दैट मीन्स अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। और अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट मीन्स अनसिमेट्रिकल रिपल्शन, और तभी जाके इलोंगेटेड या शॉर्टेंड होती है बॉन्ड, राइट? सो इनके लिए नो JTD इज देयर। व्हाई? यू कैन टेक नोट। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ क्या लिखा था हमने? D3 D5 D6 लो स्पिन एंड D8 एंड D10, इसके लिए नो JTD, नो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, दैट मीन्स नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल, देयरफॉर नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, इसके लिए हम सबको पता है व्हाट इज नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल। नाउ व्हाट अबाउट द अदर? रेस्ट कहां से स्टार्ट होगा? D1, देखो D2, फिर D3 छोड़ दो क्योंकि D3 तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, सो इट विल बी D4। इसके बाद D5 छोड़ दो, D6 छोड़ दो, D7 D8 ऑल्सो छोड़ दो, ये हो जाएगी D9। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशंस है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है, इसके लिए देखो सिमेट्रिकल नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी? लेट्स अंडरस्टैंड। दिस इज अगेन T2G, this is EG, right? Now D1 अगर fill करे, this is D1. Now यहाँ पे can you see any symmetry? No, right? This is unsymmetrical. अगर आप बीच में से प्लेन पास कराओगे तो दोनों तरफ जो पार्ट्स आते हैं वो सेम नहीं आएगी, क्योंकि इस तरफ एक इलेक्ट्रॉन, इस तरफ 0 इलेक्ट्रॉन। So this is unsymmetrical. Let's talk about D2. देखो D2 ये भी unsymmetrical. प्लेन पास करा के देखो, this is also unsymmetrical. D4 1 2 3 4, या तो आप ऊपर उठा दो या तो आप नीचे ही लिखो ऐसे, क्योंकि मैं सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, राइट? सो ये D4 ये भी अनसिमेट्रिकल है। D7 देखते हैं, 4 5 6 7, ये भी अनसिमेट्रिकल है। आप बीच में से प्लेन पास कराओ, देखो दोनों तरफ डिफरेंट आ जाएगी। D9 7 8 9, ये भी अनसिमेट्रिकल है। गॉट इट? दैट मीन्स ये सारे जो होते हैं ये हो जाएंगे अनसिमेट्रिकल,
अनसिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल. सो फॉर दिस अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस रिपल्शन भी अनसिमेट्रिकल होगी, और अगर रिपल्शन भी अनसिमेट्रिकल होगी दैट मीन्स नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल से डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इट विल बी देन डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. ये था नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल, ये होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल.